میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو انڈیا نے کہا تھا پاکستان کو کہ آپ کو اس سال کے آخر پہ ہم آپ کو بیل آؤٹ دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا پاکستان کو بیل آؤٹ دے رہا تھا بٹ پاکستان نے اب ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ابھی ہی بیل آؤٹ دیں. ظاہر ہے نیکی اگر وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہمسایوں کو ہمسایوں کے کام آنا چاہیے. ہم بھی ان کے بہت موقعوں پر کام آتے رہے ہیں اور انہوں نے 50 ملین تو ہمارا وہ دینا ہے جو کہ 1947 سے ان کی طرف ادا ہونے کے لیے کھڑا ہے, اور اس کی انفلیشن اگر آپ لگائیں تو کافی رقم. مودی حکومت نے تھوڑی نہ دینا, مودی سے پہلے جو حکومت تھی وہ دے گی نا. نہیں, اب یہ تو انویٹیشن مودی نے دیا. گورنمنٹ جو بھی انڈیا کی گورنمنٹ ہے, جب آپ نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کے سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیرٹ کرتی ہے. اگر کل کو یہاں پہ عمران خان کی دوبارہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پی ڈی ایم نے جو معاہدے کیے ہیں انٹرنیشنل, عمران خان کو ان کا پاس رکھنا پڑے گا کیونکہ سٹیٹ تو ایک ہی ہے. تو انڈین سٹیٹ ہمارا 50 ملین انڈین سٹیٹ نے دینا ہے, تو وہ 50 ملین تو ہمیں دینا, اور بیل آؤٹ بھی وہ دینا چاہ رہے. بڑی خوشائن بات ہے اگر ہم تجارت کر سکتے اکٹھے, اگر وہ یہاں پہ آ کے ہماری مارکیٹ میں اپنی فلمیں یہاں پہ لگا کے کروڑوں روپے یہاں سے وہاں لے جا سکتے تو ہمیں بیل آؤٹ بھی وہ دے سکتے. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے, ملک ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور یہ چیزیں کوئی عام سی بات ہے, اس میں کیسی ایسی بات. اوبویسلی اگر حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرے خیال سے تو ایک بہترین فیصلہ ہے, کیونکہ میں خود پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو شارٹ ٹرم جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس سے ہم کسی حد تک یہ افاقہ ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ اگر ہم بیل آؤٹ لے لیتے ہیں انڈیا سے. ایک دوسری چیز یہ ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ جو ٹریڈ روٹ ہے وہ ہمیں شارٹیسٹ پڑتا ہے. ایک طرح سے ہم روپیز میں ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انڈیا اگر کسی کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے تو اپنے روپی میں ٹریڈنگ کر رہا, نہ کہ ڈالرز میں کر رہا. ڈالر میں کر رہا. جی دیکھیں, انڈیا اس وقت ایک طرح سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے انڈیا اس وقت. سر ہمارے ملک کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی, ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو بھوک میں نے یہاں پر دیکھی ہے نا, وہ اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے, وہ اس کی لالچ کے مطابق ہے. اور جتنی لالچ اور پیسے کی ہوس میں نے پاکستان میں محسوس کیا کہ میں نے کسی کنٹری میں ایسی محسوس نہیں کی. اور آپ اگر بیل آؤٹس انڈیا یا ادھر سے کہیں سے بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں, تو میرے حساب سے تو یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے, غلط ہوتی ہیں. ہر کنٹری کو انڈیپینڈنٹ, میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ایسے خوبصورت جوان اور حوصلے والے لڑکے اور اسٹوڈنٹس, آپ لوگ ماشاءاللہ ہر چیز میں اتنی آگے ہیں. صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے دعا میری یہ ہے کہ آپ لوگوں کا خدا تعالیٰ سسٹم بہتر سے بہتر کر دے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ شاویز ندیم. شاویز بھائی, اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو انڈیا نے کہا تھا پاکستان کو کہ آپ کو اس سال کے آخر پہ ہم آپ کو بیل آؤٹ دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا پاکستان کو بیل آؤٹ دے رہا تھا بٹ پاکستان نے اب ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ابھی ہی بیل آؤٹ دیں. ظاہر ہے نیکی اگر وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہمسایوں کو ہمسایوں کے کام آنا چاہیے. ہم بھی ان کے بہت موقعوں پر کام آتے رہے ہیں, اور انہوں نے 50 ملین تو ہمارا وہ دینا ہے جو کہ 1947 سے ان کی طرف ادا ہونے کے لیے کھڑا ہے, اور اس کی انفلیشن اگر آپ لگائیں تو کافی رقم. مودی حکومت نے تھوڑی نہ دینا, مودی سے پہلے جو حکومت تھی وہ دے گی نا. نہیں, اب یہ تو انویٹیشن مودی نے دیا. گورنمنٹ جو بھی انڈیا کی گورنمنٹ ہے, جب آپ نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کے سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیرٹ کرتی ہے. اگر کل کو یہاں پہ عمران خان کی دوبارہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پی ڈی ایم نے جو معاہدے کیے ہیں انٹرنیشنل, عمران خان کو ان کا پاس رکھنا پڑے گا کیونکہ سٹیٹ تو ایک ہی ہے. تو انڈین سٹیٹ ہمارا 50 ملین انڈین سٹیٹ نے دینا ہے, تو وہ 50 ملین تو ہمیں دینا, اور بیل آؤٹ بھی وہ دینا چاہ رہے. بڑی خوشائن بات ہے اگر ہم تجارت کر سکتے اکٹھے, اگر وہ یہاں پہ آ کے ہماری مارکیٹ میں اپنی فلمیں یہاں پہ لگا کے کروڑوں روپے یہاں سے وہاں لے جا سکتے تو ہمیں بیل آؤٹ بھی وہ دے سکتے. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے, ملک ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور یہ چیزیں کوئی عام سی بات ہے, اس میں کیسی ایسی بات. اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو انڈیا نے ہمارے بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر کو انوائٹ کیا تھا اپنے ملک کے اندر, بٹ ہمارے فورن منسٹر نے ریجیکٹ کیوں کر دیا پھر؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ صحیح طرح نہیں لڑ سکتے, تو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ بجائے کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں لڑ سکتے. نہیں, وہ انگریزی تو اچھی بول لیتے ہیں, آپ دیکھیں وہ برطانیہ وغیرہ انگلینڈ میں گئے بڑا اچھا بولے, مگر انڈیا بڑا سینسٹیو میٹر ہے. تو یہ عقل مندی ہے, میں کوئی تنزیہ نہیں کہہ رہا, یہ عقل مندی ہے کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انڈیا میں بھی ان کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے وہ فریش ہے نہیں ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں. اور ویسے بھی انڈیا بھی ہماری طرف آنے کو کوئی اتنا زیادہ وہ خوشی سے آج کل نہیں آ رہے, تو اگر وہ نہیں آ رہے تو ہم کیوں جائیں. چلیں, آپ کی بات بالکل, میں آپ کی بات کے اوپر مانتا ہوں, بٹ اگر میں اسلامک ملکوں کی بات کر لیتا ہوں, اگر میں سعودیہ کی بات کرتا ہوں, جاپان کی بات کر لیتا ہوں, ادھر اٹلی کی, اس کے بعد میں ترکی کی, ایران کی بات کر لیتا ہوں, تو سب کی نظریں انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہیں.
इंडिया एक रीजनल पावर बनता जा रहा है। ठीक है। हम आज तक ये नहीं मानते थे। जनरल मुशर्रफ के दौर तक इंडिया को हम ना रीजनल पावर मानते थे, ना जनरल मुशर्रफ के दौर में इंडिया को जनरल मुशर्रफ ने रीजनल पावर बनने दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे उसके बाद जो हुकूमतें आई हैं उनकी वीकनेस है कि अब हमें ये मानना पड़ेगा कि इंडिया एक रीजनल पावर है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उस मार्केट का हर एक को अट्रैक्शन है, हर कोई चाहता है हम जाके वहाँ पे माल बेचें, ख़रीदें। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना बेल आउट पैकेजेस की, ये कोई ऐसी ये सियासत और वो सारी चीज़ें अपनी जगह होती हैं, फाइनेंसेस अपनी जगह होते हैं। रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, मगर रशिया ने अमेरिका के अभी भी पैसे देने, और अमेरिका ने कोई बोझ नहीं डाला कि भी जल्दी दो। तो ये चीज़ें हर दुनिया में आप देख लें कि जो आपस में जंगे भी लड़ रहे होते हैं कि उनका आपस में तिजारत और लेन देन भी अपनी जगह पे चल रहा है। मुझे एक बात ये नहीं समझ लगती, हमारे जो हुक्मरान है, अगर मैं सुभाष शाह की बात कर लेता हूँ, इंडिया ने कहा था कि हम आपको बेल आउट देंगे साल के आखिर पे, मगर हमारे हुक्मरानों को क्या ऐसी जल्दी पड़ गई है कि फ़ौरन ही उन लोगों ने कह दिया कि हमें आप अभी ही बेल आउट दें, हमें अभी ही चाहिए। क्या ये लोग इन लोगों ने वाकई में हमें भिखारी बना के छोड़ना? देखिए, मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत ये है कि पीडीएम ने अपने ख्वाबों ख्याल में भी ये नहीं सोचा था कि ये हुकूमत उनको लेना इतना महंगा पड़ेगा। अगर खान साहब की हुकूमत रह जाती तो आप यकीन करें खान साहब कभी दोबारा इलेक्ट होके ना आते, क्योंकि उनकी कारकर्दगी में बड़े फ्लॉज थे, इकॉनमी में उनको बड़े मसाइल थे, कोरोना की वजह से उनके चीज़ें काफ़ी डाउन लाइन गई। फिर जो उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उनको उनकी टीम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन खान साहब के साथ जो ज़्यादती की गई कि उनको गलत तरीके से निकाल के एकदम से हाईजैक गवर्नमेंट को किया गया, उससे अवाम के सेंटिमेंट्स दोबारा उनके साथ चले गए हैं। और फिर वही बात है, कुछ काम भी उन्होंने अच्छे किए हैं, उसके ऊपर अवाम उनसे खुश है। हेल्थ कार्ड, एक दुनिया में ऐसा प्रोजेक्ट, अमेरिका में भी ऐसा हेल्थ कार्ड नहीं जो उन्होंने इमरान खान साहब ने वो निकाल दिया। जी ऑब्वियसली अगर हुक्मरानों ने यह फ़ैसला किया है तो मेरे ख़्याल से तो एक बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि मैं ख़ुद पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। अगर हम देखें तो हमारा जो शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उससे हम किसी हद तक ये अफाका हो जाएगा इंडिया के साथ, अगर हम बेल आउट ले लेते हैं इंडिया से। एक दूसरी चीज़ ये है, हमें इंडिया के साथ ट्रेड पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड रूट है वो हमें शॉर्टेस्ट पड़ता है। एक तरह से हम रुपीज़ में उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इंडिया अगर किसी के साथ ट्रेडिंग करता है तो अपने रुपये में ट्रेडिंग कर रहा, ना कि डॉलर्स में कर रहा। डॉलर में कर रहा। जी देखिए, इंडिया इस वक्त एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है इनका। आपने क्या देख लिया इंडिया के अंदर के, जो आप उसको कह रहे हैं कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है? यार आप आईटी में उठा के देख लें, ठीक है, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हुए हैं, गूगल का सीईओ, यूट्यूब का अभी जो है, मतलब दुनिया में याहू हो गया, जितने भी बड़े आईटी जो जेंट्स जिनको हम कहते हैं ना, उन पे उनके ऊपर जो इंडियन बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आईटी के ऊपर, उन्होंने अपने ट्रेड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो उनकी यार इंडिया के साथ माशी लिहाज से, इकोनॉमिक टर्म्स में हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। तो अगर इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो आज फिर हम कहाँ पे जाके स्टैंड करेंगे अगर आज हम ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो? यार एक तरह से इसको कहते थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, गोल्डन स्पैरो, ठीक है, गोल्डन स्पैरो, ठीक है। तो ये एक सोने की चिड़िया है, ठीक है। इंडिया के पास बहुत सारे वसाइल हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, और हमारे पास ऐसे वसाइल हैं जो इंडियंस के काम आ सकते हैं। अगर आप देखें सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया जो है ना, अभी वो उस तरह से ट्रेड नहीं कर पा रहा। क्योंकि उनको ट्रेड रूट नहीं है। पाकिस्तान जो है गेट वे है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, ठीक है। तो इंडिया उनके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए भी है, मतलब एक तरह से इसको IR टर्म्स में कहते हैं विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए फ़ायदा है। अगर हम बेल आउट लेने के बाद, हमारे हुक्मरान बेल आउट लेने के बाद फिर इंडिया को टोन करना स्टार्ट कर दें तो ये फिर वही फिसाद ना डालेंगे। देखें, इसको पहले भी यही होता है, इसको कहते हैं ड्यूअल डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडिया हमारे मीडिया के सामने आके टीवी पे बैठ के हुक्मरान बड़े बड़े बोंगियां मारते हैं कि इंडिया के साथ ये वो है, लेकिन पीठ पीछे ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। ये आवाम के सामने रखना चाहिए। एक तरह से जो पॉलिटिकल इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी। इंडिया के अगेंस्ट हमारी इंडिया के अगेंस्ट जो हमारी फीलिंग्स है, ठीक है, जो इमोशंस है वो मज़ीद बेहतर होंगे। तो ये एक तरह से दोनों के कल्चरल एक्सचेंज होंगे, पॉलिटिकल एक्सचेंज होंगे, जितने भी जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं वो खुल जाएंगे। तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से एक तो शॉर्ट टर्म के लिए बेल आउट ले लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया ने सिर्फ बेल आउट ही देने का नहीं कहा था, इसके अलावा भी कई मुआहदे उसने कहा था कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्राइसिस के अंदर जब हमारे अंदर फूड क्राइसिस आया हुआ था तो इंडिया ने कहा था मैं आपको 50 से 60 लाख टन गंदम प्रोवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद ये बेल आउट आ गई। अगर मैं दूसरे मामलात की बात करता हूँ तो तब इंडिया तो हमारा साथ दे रहा है, तो हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं फिर?
यार हुक्मरान आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, कुछ तो आवाम का सोचें, बेचारी आवाम पिस रही है, ठीक है। रमज़ान में आप उठा के देख लें, हर चीज़ महंगी हो गई है, आटा चीनी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, ठीक है। उनको सोचना चाहिए और अपने जो हुक्मरान है ना, अपने ज़ाती मफादात देख रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, जो भी XYZ जो भी हो, ठीक है। मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ ये देखना है यार ऑन ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, कौन आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोच रहा है। तो इंडिया के साथ मेरे ख्याल से जो भी अगर राब्ता बहाल करेगा, मेरे ख्याल से वो एक तरह सर हमारे मुल्क की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती, एक बात तो ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इंसान की जो भूख मैंने यहाँ पर देखी है ना, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, वो उसकी लालच के मुताबिक है। और जितनी लालच और पैसे की हवस मैंने पाकिस्तान में महसूस किया कि मैंने किसी कंट्री में ऐसी महसूस नहीं की। और आप अगर बेल आउट्स इंडिया या इधर से कहीं से भी आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, गलत होती हैं। हर कंट्री को इंडिपेंडेंट, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास ऐसे खूबसूरत जवान और हौसले वाले लड़के और स्टूडेंट्स, आप लोग माशाल्लाह हर चीज़ में इतनी आगे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए दुआ मेरी ये है कि आप लोगों का खुदा ताला सिस्टम बेहतर से बेहतर कर दे। और सजेशंस मेरी यही हैं कि आपका सिस्टम कोई ठीक नहीं करेगा जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे। जनाब मुझे एक बात ये नहीं समझ लगती है, 21 मुल्कों में फैक्ट्री रखने वाला कह रहा है कि जी आप बेल आउट ले लें टाइम से पहले, क्योंकि वो जो फैक्ट्री वाला अगर 10-15 हज़ार करोड़ अपने साल का बनाता है तो वो उस ग्रीडीनेस में उसको डबल करना नज़र आ रहा है। दैट्स वाई वो इंसानियत का और इन चीज़ों का नहीं सोचेगा, वो अपनी तिजोरियाँ और अपने महलात डबल करने की सोच रहा है और उसके पास कोई ऐसा प्लान्स नहीं है। हाँ, अगर वो आपकी आवाम को कोई अच्छा प्लान स्क्रीन पर दिखाएं कि जी आई हैव दिस प्लान, इससे मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को फ़ायदा होगा, तो वाई नॉट, दैट्स अ गुड थिंग। जनाब अगर मैं वही इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने हमारे हुक्मरान बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर को अपने मुल्क में इनवाइट किया था, बट हमारे हुक्मरानों ने रिजेक्ट कर दिया। बट वो इनवाइट तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मगर बेल आउट लेने के लिए सबसे पहले ये लोग आगे होते हैं, हमारे मुल्क वाले। क्योंकि मुझे यहाँ पर रहते हुए 25 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं और उन 25 सालों में मैंने जो यहाँ से सीखा है वो हाथ का यूँ रखना सीखा है। हमने कभी यूँ रखना नहीं सिखाया गया हमारे मुल्क। जिस दिन हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये हाथ का पोजीशन सिखा दिया जाएगा ना, तब आप देखें हम कहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर मैं अपने ताल्लुकात बेहतर करने की बात करता हूँ तो मुझे बताइए एशिया में पाकिस्तान को अभी रिसेंटली जो अभी हम हालात चल रहे हैं, किसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? सबके साथ बेहतर करने चाहिए। अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप नॉन अलाइनमेंट पर चलें या सिंगल अलाइनमेंट पॉलिसी, अब मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का दौर है। आपने सबके साथ चलना है और सिर्फ अपने मुफादात को चलना है। ज़ाहिर है जी, ऐसा ही है। और हम इकॉनमी में इतने पीछे हैं क्योंकि हम कोई चीज़ खुद बनाते नहीं है, हमारा तालीमी मयार ज़मीन बोस होता जा रहा है। मैं खुद एक चैरिटी या फाउंडेशन चलाता हूँ परवरिश के नाम से, उसमें भी मैं यही काम कर रहा हूँ और यही मेरा मिशन है ज़िंदगी का कि हम रीच हर जगह है। मैं चोलिस्तान गया हूँ, स्कूल वहाँ पे है, राजनपुर में सैलाब का काम करने गया, वहाँ स्कूल है, हर जगह स्कूल हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो आपको लाहौर में भी मुश्किल से मिलती है। तो क्वालिटी पे हमने एजुकेशनल क्वालिटी बेहतर करें। हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन है मगर क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्वालिटी। आप यकीन करें, मेरे पास मास्टर्स करके उर्दू में इंटरव्यू देने आते हैं तो उनको गालिब का नहीं पता होता, जो अंग्रेजी में करके आती है उसको शेक्सपियर का नहीं पता। तो भाई एमए तो कितों करके आई हूँ बीबी के तरह, मुझे शेक्सपियर का नहीं पता। तो ये मसाइल हमारे हैं क्योंकि हम लोग चीज़ों को शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट भी नहीं करते जनाब, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। देखिए भी आपने बहुत अच्छी बात की है कि रमज़ान के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है हमारे मुल्क के अंदर। अगर मैं जनाब आपसे वही इंडिया की बात करता हूँ तो जनाब वहाँ पे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, सिर्फ रमज़ान करीम के मौके के ऊपर उधर रिलीफ दिया जा रहा है और हमारे यहाँ पे लोगों का खून पसीना भी चूसा जा रहा है। अगर मैं फलों की बात करूँ तो केले की तकरीबन 400 रुपये दर्जन हुए पड़े, अगर सेब की बात करूँ तो वो भी 400 रुपये दर्जन हुआ पड़ा। हर चीज़ों का रेट बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ चीज़ों का रेट कम होता जा रहा है।
यार यही चीज़ है ना, उन्होंने अपने अंदर ना एक अगर आप देख लें 75 साल हिस्ट्री है दोनों की, उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। जो फ़ौज है उन्होंने सरहदों पर सरहदी बैरक्स पे उन्होंने वो किया है, कंटेन किया हुआ है उनको, ठीक है। जो उनको कंटेन किया हुआ है, एक तरह से रोक के रखा है, ठीक है। उनके अंदर आप देख लें आईटी में उनका देख लें, ठीक है। उन्होंने ट्रेड बढ़ाई है। चाइना, हालांकि कहते हैं चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया का, लेकिन इस वक्त जो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो इंडिया का है, ठीक है। हम कहते हैं चाइना हमारा क्या कहते हैं डीपेस्ट देन द ओशियन, क्या कहते हैं स्वीटेस्ट देन द हनी, हम कहते हैं, लेकिन ट्रेड उस लेवल पे नहीं है चाइना के साथ हमारा, ठीक है। सिर्फ हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम लोन ले लेते हैं, फिर चाइनीज़ जो है ना हमसे डबल पैसे वापस ले लेते हैं।